नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। शहर, जिले और देश दुनिया की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में कोरोना के अब तक 19 करोड़ 20 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गई है। वहीं गुजरात में अब तक 8 लाख 24 हजार कोरोना केस दर्ज हुए हैं। और आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। हार्दिक पटेल का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी पार्टी में जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। बड़ोदरा में वैक्सीनेशन के आंकड़ों का मायाजाल, डोज से ज्यादा वैक्सीन देने पर उठे सवाल। और बड़ोदरा में सड़क पर कचरा डालना पड़ेगा महंगा, चुकाना होगा दंड। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आज राजकोट में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां मर्जी जिस दल में जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव नहीं बनाते। गुजरात प्रदेश युवक कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत सदस्यों के नामांकन अभियान के लिए गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल राजकोट आए। यहां उन्होंने पत्रकार परिषद को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि निखिल सवाणी आम आदमी पार्टी में गए, उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उनका निजी निर्णय है। हम पीएम मोदी की तरह अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव नहीं बनाते। जे लोकोने गमे त्यां जई सके। રાજનીતિનો એ નિયમ છે કે જે વ્યક્તિને જ્યાં ગમતું હોય ત્યાં રહેવું જોઈએ અને લોકતંત્રના નિયમમાં અમે નરેન્દ્રભાઈની જેમે કોઈને દબાવી ન શકીએ, કોઈને રોકી ન શકીએ। ઘણા બધા આંદોલનમાં ઘણા બધા સાથીઓ હોય અને એ સાથીને અહીંયા ન ગમતું હોય, કોઈ પહેલા જીપીપીમાં હોય, કોઈ પછી ભાજપમાં જાય, કોઈ પછી કોંગ્રેસમાં જાય, કોઈ પછી આમ આદમી પાર્ટીમાં જાય, તો આપણે કોઈને હાંકડે બાંધીને તો રાખી શકાય નહીં। આ માત્ર 2 દિવસ પહેલાની વાત નથી। આ પહેલા પણ આપણા ગુજરાતમાં 8-10 વર્ષ પહેલા જાસૂસી કાંડ તમે બધા સમજી શકો છો કે આવ્યો હતો। ત્યારે ફોન ટેપિંગ થતા હતા, છોકરીઓ પાસે જાસૂસી કરવામાં આવતી હતી। એટલે આ સરકારનો આ જૂનો રેકોર્ડ છે, એમાં કાંઈ નવું છે નહીં। પણ એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે પેગાસિસ નામના સોફ્ટવેરના માધ્યમથી ઇઝરાયેલી સરકાર પાસેથી સોફ્ટવેર લઈને તમારો ફોન, મારો ફોન કે રાજ્યના કોઈ પણ વ્યક્તિનો ફોન ટ્રેપ કરવો એ હું માનું છું ગુનો કહેવાય। સરકારે અને સરકારના એવા લોકોએ આના ઉપર ખુલાસો આપવાની જગ્યાએ રાજીનામા આપવા જોઈએ। રાજુ, તમને બધાને એક વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે જ્યારે જ્યારે આ રાજ્યની કે આ દેશની સરકારની પોલ ખુલે છે ત્યારે ત્યારે એ માત્ર એટલું કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સાજિશ છે। જ્યારે ખેડૂત આંદોલન હતું ત્યારે પણ આ વાત કરી, ફોન ટેપની વાત આવી ત્યારે પણ આ વાત કરી, એનઆરસી કે એનસીસીની જ્યારે વાત હતી ત્યારે માત્ર ને માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સાજિશના નામે પોતે બચી જવાનું કામ કરે છે। તો મારું બહુ સ્પષ્ટ માનવું છે કે આવા મોકા ઉપર જે પણ મંત્રાલયમાંથી આ બધું થતું હોય એ સરકારના મંત્રાલયમાંથી એ મંત્રી રાજીનામું આપવું જોઈએ। આ પહેલી વાર નથી થયું। જ્યારે જ્યારે રાજ્યના જે સરકાર હોય અને સરકારના મતદારો નારાજ થાય તો સ્વાભાવિક છે એ નારાજ મતદારો ક્યાં જાય તો કે વિપક્ષમાં જાય। વિપક્ષ એટલે કોણ તો કે કોંગ્રેસ પાર્ટી। તો નારાજ મતદારો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ન જાય અને એ નારાજ મતદારો ત્રીજી પાર્ટીમાં જતા રહે, જેથી કરીને ફરીથી વિપક્ષ હારી જાય અને સત્તા હતીને ત્યાં જીતી જાય, એટલા માટેનો ષડયંત્ર છે। તમે બધા જાણો છો કે 2012માં જીપીપી હોય, 2007ની અંદર મહાગુજરાત જનતા પાર્ટી હોય, 2017ની અંદર એનસીપી કે બીએસપી હોય અને 2022ની અંદર ફરીથી આમ આદમી પાર્ટી હોય। તો પણ કોઈ વાંધો નહીં, લોકતંત્રની અંદર એ પાર્ટીનું પણ સ્વાગત છે, ગમે ત્યાં જઈને ચૂંટણી લડી શકે। મેં કહ્યું એ રીતે કે એને રોકી શકવાની અમારામાં તાકાત નથી। 2017ની અંદર નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ 1 મહિનો ગુજરાતમાં રહ્યા હતા તો 54માંથી 34 સીટ સૌરાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસની જ આવી હતી। અને 2002ની અંદર જ્યારે રાજ્યમાં ક્રિટિકલ પરિસ્થિતિ હતી, કોમી તોફાનો થતા, ફલાણું ઢીકણું બધું, તો પણ ગુજરાતની જનતા કોંગ્રેસને 90 લાખથી લઈને 1 કરોડ મત આપતી હતી। આવનારા દિવસમાં પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી વધુમાં વધુ મતો સાથે 125 સીટ સાથે સરકાર બનાવશે અને તમારા અને મારા જેટલા પણ દુઃખો છે એ દુઃખોને દૂર કરવાનું કામ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરશે। कोरोना काल में आंकड़ों के मायाजाल मामले काफी बदनाम हुआ वडोदरा महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग फिर एक बार चर्चा में है और इस बार आंकड़ों का मायाजाल वैक्सीनेशन को लेकर रचा गया है।
बड़ोदरा महानगरपालिका द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात में 88% वैक्सीनेशन के साथ महानगरों में बड़ोदरा पहले नंबर पर है। लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन के आंकड़ों में किया जा रहा झोल खुलकर सामने आ गया। वीएमसी के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ने अब तक 11.64 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन मिली होने की जानकारी दी है, जबकि केंद्र के पोर्टल में यह आंकड़ा 14,06,000 है। दोनों आंकड़ों में 2,42,530 डोज का फर्क है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए इन दोनों आंकड़ों को लेकर फिर एक बार वीएमसी पर सवाल उठे हैं। इस मामले वीएमसी की विपक्ष नेता अमीरावत ने सवाल उठाए हैं, जिस पर वीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने अपनी सफाई दी। કોરોના જ્યારથી સ્ટાર્ટ થયો ત્યારથી બરોડા શહેરમાં આંકડાની માયાજાળો ખૂબ ચર્ચામાં રહી છે. ડેથના આંકડા છુપાવવામાં આવ્યા, નંબર ઓફ કોરોના પેશન્ટ્સના આંકડા છુપાવવામાં આવ્યા. જ્યાં ક્રેડિટ લેવાની હોય ત્યાં સપોઝ આમ લોકોના જે સંજીવની રથ દ્વારા ટ્રીટ કરવામાં આવ્યા એ પેશન્ટ બતાવ્યા 2,50,000 વિઝિટ, વેરએઝ એકચ્યુઅલ એ ડ્યુરેશનમાં ખાલી 8,000 પોઝિટિવ કેસ. કોઈ બી આંકડા એમના ટેલી નથી થતા, નથી ડેથના ટેલી થતા, નથી નંબર ઓફ પેશન્ટ્સ ના થતા, નથી નંબર ઓફ પેશન્ટ ટ્રીટેડ ના થતા. ત્યારે હવે જ્યારે વેક્સિનની વાત આવી છે તો જે વેક્સિનનો જથ્થો સ્ટેટે એલોકેટ કર્યો છે, સેન્ટરે સ્ટેટે ભેગા થઈને 11,47,000 ની આસપાસ, એના કરતા લગભગ 21% વધારે લોકોને વેક્સિન કઈ રીતે આપ્યું, 100% કોર્પોરેશને ખોટી માહિતી આપી છે અને ખોટા આંકડા જાહેર કરે છે, એ પુરવાર થઈ ગયું. વેક્સિન આવી હોય એના કરતા લગભગ 20% વધારે, એટલે દરેક વાયલમાંથી 2 જણને એક્સ્ટ્રાને વેક્સિન આપી એવું પુરવાર કરી રહ્યા છે એમના આંકડા. એટલે 100% આંકડા ખોટા માહિતી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે. એઝ પર ધેર ફિગર્સ, ઇન સ્પાઇટ ઓફ વેસ્ટેજ 2 જણે એક્સ્ટ્રાને આપી છે. હવે હકીકત તો એ છે કે 5% થી 10% વેસ્ટેજ થાય છે ને એ રિપોર્ટેડ છે કે દરેક જગ્યાએ આ વેસ્ટેજ થયો છે. આપણે વેસ્ટેજ 0 ગણીએ તો બી 20% લોકોને, એટલે કે દરેક વાયલમાંથી 2 જણને વધારેને રસી આપી, આ કઈ રીતે પોસિબલ છે? જ્યારે વાયલમાં 10 જણની રસી હોય તો એમાંથી 12 ને તો કઈ રીતે અપાય? એમના આંકડા તો એવું બોલે છે કે અમને 20% વધારે લોકોને રસી આપી. આજે એક ન્યૂઝપેપરમાં આ બાબતનો એક આર્ટિકલ આવ્યો હતો. એ ધ્યાને આવતા જ મેં અમારા આરોગ્ય અધિકારી છે એમને આ બાબતમાં ખરી બાબત શું છે, કંઈ કોર્પોરેશનની કે સરકાર લેવલથી કંઈ આંકડા આપવામાં ભૂલ છે કે કેમ, એ વેરીફાઈ કરવા માટે કહ્યું હતું. અને મને મારા ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે વેરીફાઈ કરી ફરી વખત અને જે આંકડા મળ્યા છે એ પ્રમાણે કોર્પોરેશનને કોવિશિલ્ડના કુલ 12,22,859 ડોઝ મળેલા હતા અને કોવેક્સિનના 1,06,960 ડોઝ મળેલા હતા. અને આ બંનેમાંથી આપણે કોવિશિલ્ડના અત્યાર સુધીમાં 13,05,861 ડોઝ આપેલા છે. જેટલા મળ્યા છે એના કરતાં આ તમે જુઓ તો કોવિશિલ્ડના ડોઝની સંખ્યા વધારે છે. તો એ બાબતે મેં ચર્ચા કરી તો મને એવું બ્રીફ થયું કે જે કોવિશિલ્ડનું એક વાયલ છે એમાં જે સરકારે આપણને આપ્યા છે, થયું કે જે કોવિશિલ્ડનું એક વાયલ છે એમાં જે સરકારે આપણને આપ્યા છે એમાં આપણે પ્રતિ વાયલ 10 ડોઝ એ રીતે ગણીએ છીએ. પણ જે કોવિશિલ્ડ છે એની ઘણી બધી વાયલમાંથી એક જ વાયલમાંથી 10 ને બદલે 11 લોકોને પણ વેક્સિન આપણે મૂકી શક્યા છીએ. 0.5 ml નો ફરક હોય એટલે આ બનતો હોય છે. અને એના કારણે આ કોવિશિલ્ડના ડોઝ છે એ આપણે રિસીવ છે એના કરતાં જે આપણે આપ્યા છે એનો આંકડો વધારે બતાવે છે. જ્યારે એ જ બાબતમાં હું કોવેક્સિનની વાત કરું તો કોવેક્સિનના આપણને 1,06,960 મળ્યા છે, એની સામે આપણે 1,08,29 ડોઝ આપેલા છે. એટલે એમાં જે આપણને જેટલા ડોઝ મળેલા છે એના કરતાં 5% જેટલો ઓછા આપણને વેક્સિનેશન થયેલું છે. એટલે એમાં આવું એક તો બે વાત છે કે આવી એક જ વાયલમાંથી 10 ને બદલે 11 એવી ઘટના એમાં બનતી નહોતી. અને જે 5% વેરિએશન છે એ જે વેસ્ટેજ જાય છે એનું છે. એટલે જે આ રીવેરીફાઈ કર્યા પછી જે આપણા આંકડા છે એ બિલકુલ સાચા જ છે.
હવે કદાચ ત્યાં ફરી વખત તમે એ પણ વાત કરી છે કે ભાઈ જે સરકારમાંથી જે આંકડા મીડિયામાં રજૂ થયા છે તો એમાં ઓછા બતાવે છે, તો એટલે એકવાર ત્યાં પણ વેરીફાઈ કરવાનું કહ્યું છે. એટલે જે અત્યારે આપણે પણ જે પણ કંઈ રેકોર્ડમાં બતાવીએ છીએ એ બિલકુલ બરાબર છે. वडोदरा शहर में खुले में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग के जरिए खुले में कचरा फेंकने वाले लोगों को दंडित अब किया जाएगा. वडोदरा शहर को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए खुली जगहों पर कचरा फेंकने वाले लोगों पर अब दंडनीय कार्यवाही की जाएगी. सीसीटीवी मॉनिटरिंग के जरिए सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें दंडित भी किया जाएगा. वडोदरा शहर के कई इलाकों में खुले में लोग कचरा फेंक देते हैं और कई लोग डस्टबिन होने के बावजूद कचरा पेटी के बाहर कचरा फेंकते हैं. ऐसे में आवारा पशु भी इस गंदगी में बढ़ोतरी करते हैं. लेकिन अब शहर में लगातार मॉनिटरिंग कर दंड करने का अभियान छेड़ा गया है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी. ઘરે ઘરે જો ડોર ટુ ડોર ગાડી કચરો લેવા જાય છે તો આપણે પણ વિચારીએ છીએ કે કચરો ગાડીમાં કેમ નહીં, ગાડીમાં જ કચરો નાખવો જોઈએ. અને ડોર ટુ ડોર ગાડીમાં કચરો નાખવાથી એટલો સહકાર પણ લોકો પણ આપી રહ્યા છે. ત્યારે વડોદરા શહેરમાં જ્યારે પહેલાં 1000 જેટલા ઓપન સ્પોટ હતા, જે અત્યારે 300 જેટલા રહી ગયા છે, એને પણ નેસ્ત નાબૂદ કરવા વડોદરા શહેરની એક લોકોની અપીલને માન રાખીને આપને આવનાર સમયમાં પહેલાં પ્રેમથી અને પછી ત્યારબાદ જો ન માને તો એને કડક કાર્યવાહીના ભાગરૂપે આવનાર સમયમાં વડોદરા શહેર કઈ રીતે સ્વચ્છ બને એ દિશાનું એક પહેલ છે, જેથી કરીને લોકોને પણ પ્રેસ મીડિયા દ્વારા અમે સહકાર ઈચ્છીએ છીએ. वहीं पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भी मामले पर आपत्ति जताई. હવે એવું છે કે આ નિયમ તો આજે નથી, પહેલાંથી જ છે. ફરી એને રિવ્યૂ કર્યો, ચલો ને સમજા રિવ્યૂ કર્યું. તમે વિચાર કરો કે અમારા સફાઈ સેવક કામ કરે, પછી ડોર ટુ ડોરની ગાડી આવે. શબ્દ શું છે? ડોર ટુ ડોર. એમને પૂછો ડોર ટુ ડોર પર જાય છે, નાકા ઉપર ખડી કરી દે છે ગાડી અને લોકોએ કચરો નાખી દે. તમે જો સફાઈ વેરો લેતા હોય, દરેક કોઈ બી વ્યક્તિ આવે, કોઈ એવી ઈચ્છા રાખે કે મારો શહેર ગંદુ રહે, દરેકને લાગણી હોય, ચાહે કોર્પોરેટર હોય, સામાન્ય નાગરિક હોય, મેયર હોય, ડેપ્યુટી મેયર હોય, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનો ચેરમેન હોય, ચાહે કમિશનર હોય, બધાને લાગણી તો એક જ છે કે શહેર સાફ રહેવું જોઈએ. તો સાફ કરી રીતે રહે કે ભાઈ એ કચરા નાખવાની વ્યવસ્થા જ્યારે જૂના સમયની અંદર 2 ટાઈમ સફાઈ થતી હતી અને ગાડીઓ ફરતી હતી. પેલા અમારા સફાઈ સેવકો જો મહેનત કરે છે ને, જેને રીઢની હડ્ડી કહેવાય, જે તમામ કચરાઓ ઉઠાવે ને તમામ ગંદકીઓમાં લપટાયેલો વ્યક્તિ જુદી જુદી બીમારીઓથી ઘેરાઈ જાય, એનો કોઈએ વિચાર નહીં કર્યો. ડોર ટુ ડોરની ગાડી પાછળ 50-100 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો, પણ એના હકના પૈસા નહીં આપ્યા. આજે પણ મારો સફાઈ સેવકની તમામ માંગો અધૂરી છે. રોજિંદાની નોકરી, શાની રોજિંદાની નોકરી ભાઈ? જે ગંદુ કામ કરતું હોય એને તાત્કાલિક પરમનન્ટની નોકરી આપો ને, તો તમે કહો કે બહુ સારા માણસ છો, અને તે ત્યારે એક ખંતથી કામ કરશે. અહીંયા અધૂરી પગાર આપવાનું અને એની પાસે કામ કરવાનું, પોળે પોળે નાક્યા ઉપર કચરા નાખવાની વ્યવસ્થા નહીં કરવાની, પાનવાલા ગલ્લાવાલા એની પાસે કોઈ એવી વ્યવસ્થા કોર્પોરેશન ના કરે, અને પછી કોઈ નાગરિક પાન ખાય અથવા કશું ડબ્બો હોય, સિગરેટનો ડબ્બો આ હોય, નાગરિક ફોકી દે તો શું એ પાનવાળાને દંડ કરશો? તમે व्यवस्था करो पहला અને પછી જોગવાઈ કરો. बोरसद के नगर सेवक पर गोलीबारी के जुर्म में गैंगस्टर रवि पुजारी को अहमदाबाद एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गैंगस्टर रवि पुजारी को 2017 में हुई गोलीबारी के एक मामले में हिरासत में लिया. इस मामले में गुजरात के आणंद जिले के बोरसद के नगर सेवक प्रज्ञेश पटेल पर कथित रूप से रवि पुजारी के इशारे पर हमला किया गया था. इस मामले रवि पुजारी को बोरसद कोर्ट में पेश किया गया. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी के तौर पर काम करने वाले रवि पुजारी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जरिए बोरसद के निर्दलीय नगर सेवक से जबरन वसूली के लिए धमकी देने और फायरिंग करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
पिछले 1.5 वर्ष से कई त्योहार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ रहे हैं। आज देवशयनी एकादशी है और हिंदू धर्म में इस एकादशी को काफी बड़ा माना जाता है क्योंकि इस दिवस पर देव सो जाते हैं। आज इस खास दिवस पर भगवान विट्ठलनाथ जी मंदिर में पारंपरिक रूप से पूजा की गई। वडोदरा में पिछले 212 वर्षों से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विट्ठलनाथ जी की शोभा यात्रा धूमधाम और श्रद्धा के साथ आयोजित की जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते शोभा यात्रा को सार्वजनिक रूप से आयोजित नहीं किया जा सका। मंदिर परिसर में ही भगवान के रथ का भ्रमण करवाकर परंपरा को निभाया गया। वडोदरा के मांडवी रोड स्थित भगवान विट्ठलनाथ जी के मंदिर में भगवान की शोभा यात्रा इस वर्ष चंद भक्तों की उपस्थिति में ही संपन्न कराई गई। भगवान को मंदिर में ही भ्रमण कराया गया। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ द्वारा खास पूजा और आरती की गई। आज से 4 महीनों के लिए हिंदू धर्म में भगवान शयन करते हैं और ऐसे में मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान फिर से नगर यात्रा पर बारात लेकर निकलेंगे और तुलसी माता संग ब्याह रचाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में चल रही कोरोना परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देवस्थान ट्रस्ट ने ये परंपरा मंदिर के ही परिसर में पूरी की है। सालों से आज चलती आई परंपरा में गायकवाड़ परिवार के द्वारा जो पूजन अर्चन होता है, आरती होती है, बाद में वरघोड़ा का प्रस्थान होता है। ભગવાનનું વિઠ્ઠલનો આજ વરઘોડો છે એટલે મને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજે વરઘોડો પંઢરપુરમાં વિઠ્ઠલ મંદિરનું થાય છે એ જ પ્રમાણે અમારું પણ કેટલા વર્ષોથી અહીંયાથી આજ બહાર એમનું યાત્રા નીકળે છે ભગવાનની, પણ આજ મહામારીના લીધે અમને આપણા આંગણમાં જ કરવાનું વિચાર કર્યું, કારણ ભગવાનને બહાર કર્ફ્યુમાં લઈ જવાનું કાંઈ અર્થ નથી, લોકોનું પણ ત્રાસ થાય છે અને એમે કાંઈ મતલબ નથી। તમે જોયું રથયાત્રાનું કેવું થયું, તો એ જ અમારી વિચાર હતું કે અહીંયા જ કરવાનું। ભક્તો આવીને દર્શન તો કરી શકે પણ વરઘોડો બહાર નહીં કાઢું, આ જ વિચાર। પરંપરા તો ચાલવી જ છે એટલે હું પણ આવી છું આરતી માટે અને બધાને હું શુભેચ્છા આપું છું આજના પવિત્ર દિવસે। वडोदरा शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ऐसे में वडोदरा शहर की एक 28 साल की लड़की ने 15,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर गुजरात की पहली महिला स्काई डाइवर बनने की सिद्धि हासिल की है। अमूमन कुछ ही फीट की ऊंचाई से नीचे देखने पर लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ऐसे में वडोदरा की एक महिला ने आसमान से 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगाकर पुरुषों के माने जाते क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। ऐसा करने वाली श्वेता पहली महिला गुजराती है। अब वे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से छलांग लगाने की इच्छा रखती है। 28 साल की श्वेता ने एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में बीबीए और एमबीए की पढ़ाई की है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। स्काई डाइविंग की हम बात करें तो सबसे पहले स्काई डाइविंग के लिए आपके पास पैसे होने ज़रूरी है। तो अगर खुद से करने की इच्छा है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना करने की इच्छा है, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इच्छा तो मेरी पहले से ही थी, पर तब मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मेरा बिजनेस सक्सेस हुआ और मेरे पास कुछ पैसे आए तो मैंने ये फील्ड में आगे बढ़ने का सोचा। स्काई डाइविंग का अगर स्काई डाइविंग का बोले तो मैंने वो 2016 में सोचा। और अगर आप ऐसा बोले कि हवा में रहने का कब से ऐसे शौक़ था, तो वो मैं बोलूँगी जब मैंने 20 साल की थी और पैरासेलिंग किया था एक बार, तब से ये इच्छा थी कि मुझे हवा में रहने वाला कुछ करना है ऐसे करके। पहला जो जंप था मैंने महसाना में किया था गुजरात में, पर वो टेंडम जंप था, मतलब कोई और मुझे मैनेज कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया था वहाँ पे। जो मेरा ट्रेनिंग है वो मैंने 2018 दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया था। मैं स्पेन गई थी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। मैं वहाँ पे 30 दिन के लिए थी और 30 दिन में मैंने 29 जंप्स वहाँ पे किए थे। आगे तो बहुत सारे आइडियाज़ है, जैसे पहले मुझे 50 जंप कंप्लीट करने हैं, अभी मैंने सिर्फ 47 जंप्स किए हैं। उसके बाद मुझे 200 जंप्स कंप्लीट करना है, उससे आगे मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। और मुझे एक बार सबसे ज़्यादा जो है अभी जो करना है वो मुझे एक इंडिया में जंप करना है। जहाँ मौका मिले मुझे वहाँ जंप करना है और यहाँ पे अभी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आई वॉन्ट कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ये चीज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मुझे सपोर्ट करे ये चीज़ में, वो मुझे दे परमिशंस दे और सपोर्ट दे जो भी ज़रूरी है, जिससे मैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जैसे जो मतलब
पूरे दुनिया में गौरव है हमारा गुजरात का, तो वहाँ पे मैं कुछ करूँ और जो हमारा गौरव है उसे और ज़्यादा बढ़ाऊँ। अभी की लड़कियों को बस यही मैसेज है कि अगर आप सपने देखते हो तो बस उस पर टिके रहो, उसके लिए मेहनत करो, सबको कन्विंस करो। जितना आप कन्विंस करोगे उतना लोग कन्विंस होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहे तो आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया, वैसा मत करो, क्योंकि अगर मैं वैसा करती तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे परिवार का ये सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे डिसीजन लेने का जो फ्रीडम है वो दे दिया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं हम अगेंस्ट है तो आप नहीं कर सकते हो। उन्होंने मुझे स्ट्रेट बोला कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों करना है ये चीज़, आपको क्या हासिल होगा, और पर हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको करना है, आप कैपेबल हो, आप खुद से कर लो, तो अगर आपके सपने पूरे होते हैं वो बात की हमें खुशी ही होगी। ऐसे वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए वीएनएम। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CKSVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन। क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC/BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रताप नगर, वडोदरा। મારી છોકરી 3 મહિનાની જેટલી થઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે મારી છોકરીની આંખ આવી છે। હું સિલાઈ કામ કરું છું।
સંતાનની ચિંતા હતી અમને, એક આંખ દૃષ્ટિની હતી એટલે, અને આગળ શું કરશે, ભણી શકશે કે ના ભણી શકશે એ ચિંતા હતી અમને. અમે ખેતી કરીએ છીએ અને કોઈક વખત મજૂરી કરવા બહાર જવું પડે છે. અમારી છોકરી જન્મથી આંખે દેખાતું નથી હતું. બરોડામાં એમ ખબર પડી કે છોકરી કે સારી સંસ્થા છે. 30 વર્ષ પહેલાં વડોદરાના સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે કોઈ જ સંસ્થા કાર્યરત નહોતી. બહુ જ પરગજો સ્વભાવવાળા મહાનુભાવોએ વિચાર્યું કે આપણે આ સેવા વડોદરામાં શરૂ કરવી જોઈએ. લાયન્સ અંધકન્યા શાળામાં અમે 50 જેટલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળાઓને અભ્યાસ સાથે રહેવા અને જમવાની સુવિધાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને એ તમામ નિઃશુલ્ક હોય છે. અને આ બાળાઓને જે વિષયમાં વધારે રુચિ હોય એ વિષયમાં એને આગળ લઈ જવા માટેના બધા પ્રયત્નો કરીએ છીએ અમે. The aim of the institution is to see these visually impaired girls grow into a beautiful human being. We started with 4 girls and 600 girls have already passed from the institution. જ્યારે હું અહીંયા આવી ત્યારે હું કોરી સ્લેટ જ હતી. 1 થી 7 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ મેં લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં જ પ્રાપ્ત કર્યો અને હાલમાં હું લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં જ બ્રેલ ટીચર તરીકે ફરજ બજાવું છું. જ્યાંથી હું શીખી એ જ બધી વસ્તુ મને અહીંયા ફરીથી મારા જેવી બીજી વિદ્યાર્થીનીઓને શીખવાડવા મળી રહી છે, એનો મને બહુ જ ગર્વ છે. We are in the process of constructing a new school building. A new school building for our girls that is going to be very accessible and an inclusive resource center for anyone with any type of disability. Our goal is to provide education from nursery to college. We want to start vocational and skill training in our center itself. So these girls get the best platform to excel in life. For the past 30 years, this institution is managed purely by donations and fundings. At this moment, we have bigger dreams and we are going to take a bigger step. So I appeal to all the Barodians, people connected to Baroda and people who are connected to this cause to come forward, hold our hands and walk this wonderful journey with us. I'm the joy. भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने आज अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है. इस मौके पर गुजरात में जगह जगह वृक्षारोपण समेत के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. वडोदरा के मकरपुरा में इलेक्शन वार्ड नंबर 18 में भारतीय जनता पार्टी बख्शी मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण, तुलसी के पौधे का वितरण, रक्तदान शिविर और गौरी व्रत के उपलक्ष्य में बच्चियों को मेहंदी लगाने जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस मौके पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी हुआ. कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट, गुजरात प्रदेश बख्शी मोर्चा अध्यक्ष उदय कानगढ़, मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही. आज देवशयनी एकादशी અને યોગાનુયોગ રીતે અમારા ગુજરાત પ્રદેશના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલજી, જેમણે પેજ કમિટીનો મંત્ર આપી અનેક કાર્યકર્તાઓને મોટિવેટ કર્યા અને કોરોનાની મહામારીમાં એમણે સેવા એ જ સમર્પણ એ સૂત્ર આપીને કેટલાય કાર્યકર્તાઓને કાર્યાન્વિત કર્યા. એમનો એક યશસ્વી કાલખંડનો પહેલું વર્ષનું પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે શહેર બક્ષીપંચ મોરચા એ પ્રદેશ બક્ષીપંચ મોરચાના અધ્યક્ષ આદરણીય ઉદયભાઈ કાનગડની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ સેવાકીય કાર્યક્રમો જે ભાજપની પરંપરા રહી છે
એ પ્રમાણે આ વર્ષની પ્રથમ વર્ષની ઉજવણી પણ વિવિધ સેવાના કાર્યક્રમો થકી કરી છે. એ બદલ પક્ષી પંચ મોરચાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. હાલમાં આપ જાણો છો તે પ્રમાણે ભારત દેશમાં નહીં પરંતુ પૂરા વર્લ્ડની અંદર ગ્રીનરીની ખૂબ જરૂર છે. એટલે અમારા પ્રદેશ પ્રમુખની ઈચ્છા છે કે આજની તારીખમાં શક્ય એટલા વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવવા તથા કોઈપણ દલિતના ઘર આપણા ઘરે પોતાના ઘરે યજમાન તરીકે બોલાવી અને એનું જમાડવા અને એમનું સ્વાગત કરવું એવું આજનો અમારો કાર્યક્રમ છે. डभोई के पलाशवाड़ा में विधायक शैलेश मेहता ने 12 पेड़ लगाकर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने का प्रयास किया. डभोई एपीएमसी में भी शैलेश मेहता के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. साथ ही विभिन्न इलाकों में भी वृक्षारोपण करते हुए डभोई में नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की महत्ता समझाई गई. गुजरात की राजनीति का केंद्र बदलने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के कार्यकाल को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है. 1 साल पूरा होने पर गुजरात के कई शहरों में वृक्षारोपण किया गया. छोटाउदेपुर शहर भाजपा द्वारा इस मौके पर वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. गुजरात भाजपा के आदेश अनुसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा पादरा में और साधी में एपीएमसी द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर वृक्षारोपण किया. वहीं भरूच जिला शहर भाजपा द्वारा भी वार्ड नंबर 4 के पुराने मामलतदार ऑफिस में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष मारुति सिंह अटदरिया, शहर अध्यक्ष प्रकाश पटेल, जिला मंत्री दिवेश पटेल, नगरपालिका के अध्यक्ष अमित चावड़ा, महिला मोर्चा अध्यक्षा अंबा परीख और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. बिगड़ते जा रहे पर्यावरण को सुधारने के लिए अपने हिस्से का पर्यावरण खुद ही संजोना है. ऐसे में वडोदरा शहर की शैक्षिक संस्था CKSVIM द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कॉलेज परिसर में पेड़ पौधे लगाए गए हैं. गुजरात प्रदेश भाजपा के रूप में सीआर पाटिल के कार्यकाल को आज 1 वर्ष पूरा हुआ है. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त शहर जैसे अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 13 के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा CK विजापुर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया. इस मौके पर पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, NPSS की पूर्व अध्यक्षा मीनाबा परमार समेत के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ CKSVIM के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. CKSVIM कॉलेज परिसर में पेड़ पौधे लगाकर सभी को वृक्षारोपण को तवज्जो देने का संदेश दिया गया. 5 जून पर्यावरण दिन के बाद हर वक्त बड़ौदा शहर को, समग्र देश को पूरे हरे रंग से रंग देने की जो कल्पना है, प्रकृति के साथ तादात्म्य साधने की जो कल्पना है, वो पूर्ण करने के लिए आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है. और पूरे शहर भर में युवा मोर्चा हो या लघुमती मोर्चा हो या कोई भी हो, और जो प्लास्टिक मुक्त अभियान जो हम चला रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री की कल्पना थी कि स्वच्छता से स्वस्थता की ओर पूरा राष्ट्र बढ़े, इस अंतर्गत हम सब ये कार्य कर रहे हैं. विद्यालय के CKSVIM कॉलेज में आज जो ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ, इसीलिए हम सब बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं. एंड थैंक यू दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ वार्ड 13. हमारे CK शाह विजापुर वाला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक MBA की कॉलेज है, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था. हम बहुत आभारी हैं पूरे समिति ने जिसने ये कार्यक्रम को संचालित किया और हमारी विद्यालय, हमारी कॉलेज को ये मौका दिया कि हम इसके सहभागी बने. आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक और गुजरात के सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव और आम आदमी पार्टी गुजरात संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. आम आदमी पार्टी वडोदरा में लगातार मजबूत होती दिख रही है. इसी क्रम में वडोदरा जिला, छोटाउदेपुर जिला और नर्मदा जिला के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संगठन बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के विधायक और आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव और गुजरात प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया खास उपस्थित रहे. उन्होंने पार्टी सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए आने वाले दिनों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन पर चर्चा की. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया, हाल ही में आम आदमी पार्टी में जुड़े महेश सवाणी, आम आदमी पार्टी की वडोदरा की अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. सबसे पहले तो
पॉलिटिक्स भी जो होता है, जो सरकार होती है वो पब्लिक की सेवा करने के लिए होती है और हम लोग तो सेवा का काम करते ही थे। तो हमें ऐसा लगा कि हम लोग अगर सूरत में अगर ये काम कर सकते हैं, जो काम हमारी जेब के पैसों से कर सकते हैं, ये क्यों ना हम पूरे गुजरात में पॉलिटिक्स में जाके करें। और जो पॉलिटिक्स में अभी जो चल रहा है, जो पुराना जो पॉलिटिक्स में जो चल रहा था, वो हमें पसंद भी नहीं था कि उसमें जो आम जनता है उसको इतना उसके लेवल में जो उसका होना चाहिए, उन लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो हमें लगा कि हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए जुड़ा कि ये आम जनता की पार्टी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने पब्लिक के लिए क्या किया, बीजेपी के शासन में 27 साल में बीजेपी ने पब्लिक के लिए क्या किया, और अरविंद केजरीवाल का 7 साल का जो शासन था उसमें उसने पब्लिक के लिए क्या किया वो मैंने देखा, और वही हिसाब से मैंने आम आदमी पार्टी में हम लोग जुड़े हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के नगर सेवक जहां देसाई पर लैंड ग्रेबिंग के तहत मामला दर्ज करने का आवेदन दिया गया था, जिस मामले को जहां देसाई ने खारिज किया है। बड़ोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस काउंसिलर जहां देसाई के खिलाफ लैंड ग्रेबिंग के तहत कार्यवाही की शिकायत जिलाधीश और मेयर को की गई थी, जिसे काउंसिलर जहां देसाई ने खारिज किया है। સૌપ્રથમ તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જે લોકો આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કઠપૂતળીઓ બનીને આવ્યા હતા। બીજેપીના નેતાઓ જ આ લોકોને ઊભા કરીને મોકલ્યા છે। જે લોકોને આ જમીન પર કોઈ લેવા દેવા નથી એવા લોકો ખોટી રીતે કોઈપણ જાતનું નોલેજ વગર, કોઈપણ જાતની આ જગ્યાની સ્ટડી કર્યા વગર માત્ર આક્ષેપ કરવા માટે આવ્યા હતા। એટલે હકીકતમાં એવું છે કે આ જે લોકો ખોટા આક્ષેપો કરી રહ્યા છે, આક્ષેપોનો હું જવાબ આપી રહ્યો છું કે આ જે જગ્યાની વાત કરી રહ્યા છે એ જગ્યા ઓલરેડી કોર્ટ મેટર ચાલે છે। ત્યાં 17 પરિવારો રહે છે। કેમ માત્ર જહાભાઈની નામની તમે નોટિસ આપી? કારણ કે હું કોર્પોરેટર છું એટલા માટે। તમે લોકો જે ગ્રીન બેલ્ટના પ્લોટો તમારા મળતિયાઓને આપીને જે દબાવી દીધા છે, તમે પોતાના તમારા વ્યવસાય કરવા માટે જે ગ્રીન બેલ્ટના પ્લોટો દબાવી પાડ્યા છે, જેમાં બાંધકામો કરી દીધા છે, એના લીધે તમે આ એક કોર્પોરેટર તરીકે મને મારા વિરુદ્ધમાં લોકોને ઊભા કરો છો। પરંતુ હકીકત એવી છે કે કોર્ટના તમામ ચુકાદાઓ હાઈકોર્ટના અમારી તરફેણમાં આવેલા છે। હાલમાં અમે કલેક્ટરમાં અરજીઓ પણ કરેલી છે। કોર્ટે કલેક્ટરને મળવાનું કીધું, કલેક્ટરમાં અરજી કરવાનું કીધું, એ અરજી પણ કરેલી છે। એની પ્રોસિજર પણ પેન્ડિંગ છે। નીચલી કોર્ટમાં પણ દાવો ચાલે છે। એટલે આ એકદમ સરાસર, એકદમ ખોટું અને વાહિયાત આવેદનપત્ર છે। આ રીતે ખોટી રીતે બદનામ કરવાનું જે કાવતરું છે એનાથી અમે ગભરાતા નથી। હું પણ ચોક્કસ ન્યાય માટે કોર્ટનું શરણ લેવાનો છું અને કાયદેસરની કાર્યવાહી આ લોકો સામે કરવાનો છું। इस मौके पर जहां देसाई के समर्थन में कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव भी आए और उन्होंने कहा कि जहां देसाई का राजनीतिक करियर खराब करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। ઝાભાઈને નોટિસ નથી આપી, પણ ઝાભાઈને દબાવવાનું કૃત્ય કર્યું છે એ વાત ચોક્કસ છે। સયાજીરાવ ગાયકવાડની આ ફરમાન હતું અને તે જમાનામાં તમામ જગ્યા સરકાર એટલે ગાયકવાડ સરકારની હતી અને તે જમાનામાં આ લોકોને જમીન ફાળવેલી છે। કલેક્ટર પછી આવ્યા, જમાનો બદલાયો, જમીનોની કિંમત બદલાઈ। જે કલેક્ટરે આમને તોડવાનો ઓર્ડર આપ્યો ને પાસા કર્યો, એ કલેક્ટરે આ વડોદરા શહેરની અંદર તમામ મિલકતો જબરજસ્તી તોડી છે અને એના લીધે લોકો કોર્ટમાં ગયા અને કોર્ટમાંથી જીતીને આ કોર્પોરેશન પૈસા ભરી રહી છે। આ કૃત્ય કર્યું છે એમને પાસામાં મોકલવાનું કારણ આ નહોતો। પાસામાં મોકલવાનું કારણ એ હતું કે એ કોલેજની અંદર ચૂંટણી ના લડી શકે, એ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી ના લડી શકે, એ રાજકીય વિરોધ પક્ષ તરીકે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી છે એના એક સનિષ્ઠ કાર્યકર્તા જે લડાકુ છે એને દબાવવાની कोशिश કરવા માટે આ બધા કૃત્યો કરી રહ્યા છે। कुछ महीनों के बाद गर्भपात कराना सरकार ने भी कानूनन जुर्म करार दिया है, लेकिन इसी बीच महिसागर के संतरामपुर का एक वायरल वीडियो हड़कंप मचाने वाला था। इस वीडियो पर कार्रवाई करते हुए अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। महिसागर जिला के संतरामपुर में अवैध रूप से गर्भपात मामले पुलिस ने 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की है। महिसागर एलसीबी टीम ने दोनों महिलाओं से सघन पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों की जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों संतरामपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला का अवैध रूप से गर्भपात कराया जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और वीडियो में दिख रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर ऐसा घिनौना अपराध करने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वायरल थયેલા અનુસંધાનમાં વિડીયોમાં જણાવેલ જગ્યાએ અમે તપાસ કરતા વિડીયો
સંતરામપુર શહેરમાં શિકારી ફળિયાનો છે અને સ્થળ ઉપર જગ્યાએ તપાસ કરતા એક બેન ભાડેથી રહેતા હોય એવું જાણવા મળેલું. ત્યાં તપાસ કરી તેમના રૂમમાં જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીની રૂબરૂમાં તપાસ કરતા એના રૂમ પરથી 6 ગોળીઓ મળી આવેલ છે, જે ગોળીઓનો ગર્ભપાત કરવા માટેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે એવું તેઓએ જણાવેલ છે. ત્યારબાદ તેઓએ અમને આ બાબતે મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક્ટ કલમ 30 તથા મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી એક્ટ 1971ની કલમ 3(1)(4)(b) મુજબ ફરિયાદ આપેલ છે. ફરિયાદ અમે દાખલ કરેલ છે અને આજુબાજુના નિવેદનો લીધેલ છે. તેઓ જણાવે છે કે આ બાઈ નર્સિંગમાં હોસ્પિટલ રિયલમાં નર્સ તરીકે નોકરી કરે છે અને એ છેલ્લા 8 વર્ષથી મકાન ભાડેથી રહે છે અને આવું કોઈ કૃત્ય થતું હોય એવું અમે જાણે નથી એવું આજુબાજુના જણાવે છે, જેવાનું નિવેદન લેવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ જે આ બાઈ જે છે જે વિડીયોમાં દેખાય છે એનું આઈડેન્ટિફાઈ હજુ સુધી થયેલું નથી અને આ વિડીયોમાં જણાવેલ સ્થળની તપાસ કરતાં એ સ્થળ એ જગ્યાનો છે, પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિ જો તો આ વિડીયો હાલની परिस्थितिને અનુરૂપ નથી પણ અગાઉનો હોય એવું मालूम पड़े છે. पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर का एक निवासी बीती रात से लापता था और आज सुबह सुबह उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ताज्जुब की बात यह रही कि इस शव के सिर पर तृणमूल का झंडा लटकाया हुआ था। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायखंड थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान रायगंज थाने के 50 वर्षीय देवेश बर्मन के रूप में हुई है। विष्णुपुर गांव का निवासी देवेश बर्मन बीती रात रोज की तरह चाय पीने निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों ने देवेश बाबू के शव को कुछ दूरी पर एक पेड़ पर लटका पाया और मृतक के चेहरे पर तृणमूल कांग्रेस का झंडा लिपटा हुआ था। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक देवेश बर्मन कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष थे। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देवेश बाबू के बेटे विद्रोही बर्मन ने पिता की हत्या करने वाले लोगों को उचित सजा देने की मांग की है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কারণ যদি আমার বাবা যদি নিজে সুইসাইড করতো তাহলে পাগুলা মাটিতে ঠেকে থাকতো না। তারপরে এবার পায়ে বা পায়ে দেখা যাচ্ছে আঙুলে রক্ত, আর নিজে যদি সুইসাইড করতো পায়ে রক্ত, তারপরে পা মাটিতে ঝুলে থাকতো না। এগুলা দেখে বোঝা যাচ্ছে। তারপরে মুখে টিপি দেওয়ানো আছে আর টিএমসির ফ্লাক্স দিয়ে বাঁধানো আছে মুখটা, যেন হয়তো কোনো আমার বাবা পার্টি করতো, আবার হয়তো কোনো পার্টিরও কাজ হতে পারে। কোন দল করতো তোমার বাবা? কংগ্রেস। মানে কারা মারতে পারে এটা? থাকতে পারে কারো, এবার কারো মনের কথা তো বলা যাবে না, কারো মনে রাগ থাকতে পারে হয়তো। কালকে তোমার বাবা কখন বাইক থেকে হয়েছে বের? কি বলে হয়েছে বের? আমার বাবা তো প্রতিদিন চা খাইতে পারায়, প্রতিদিনই 10:30 11টার দিকে বাড়িতে ঢোকে। তো আমরাও জানি প্রতিদিন যেরকম আসে আজকেও চলে আসবে। যখন দেখছি 11টা 11:30 বেজে যাচ্ছে তখন বাড়ায়নি, বাড়িতে যায়নি, তখন আমি বাড়ালাম বাইকটা নিয়ে, যাই চায়ের দোকানের দিকে আছে নাকি দেখি ওদিকেও নাই। দোকানগুলো দেখলাম, কিছু কিছু দোকান বন্ধ, কিছু কিছু দোকান খোলা ছিল, তো নাই দোকানগুলোতে দেখে টেকে চলে আসলাম। তারপরে এবার মাঠে এখন কাজের সময় ধান গাড়ার জন্য কালকে জমি ভিজাইছি, তো সারাদিন জল চলছিল, যে রাত্রেবেলা চাষ করার জন্য মাঠে গেছে নাকি মনে করে আর মানে খোঁজাখুঁজি করলাম না, যে গেছে বুঝি মাঠের দিকে, রাত্রে ট্রাক্টর গেছে নাকি চাষ টাস করে আসবে। তো সারা রাত্রি আসেনি, তারপরে ভোরবেলা আবার বাড়ালাম 4টার দিকে বার হয়েছি, যে সারা রাত্রি আসেনি, लोकटा গেল কোথায়। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में कबरई इलाके में ब्लॉक प्रमुख की शपथ लेने से पहले ही सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। क्यों है ये घमासान, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के कबरई ब्लॉक में शपथ लेने से पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है।
दरअसल प्रभात पाठक ने ब्लॉक प्रमुख के नामांकन पत्र में राजू सिंह द्वारा नहीं दर्शाया गया एक भी अपराध उस पर आपत्ति जताई है। 2008 से जनपद महोबा के खन्ना थाने में गैर जमानती वारंट उन पर दर्ज है। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख के रूप में विजयी राजू सिंह यानी अभिनेंद्र सिंह के ब्लॉक प्रमुख बनने पर सवाल उठाए गए हैं। प्रभात पाठक का आरोप ये भी है कि राजू सिंह को सरकारी सुरक्षा, हत्या और हत्या के प्रयास, अपहरण, दलित एक्ट जैसे कई मामलों में आरोपी पाया गया है। शिकायत के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। प्रभात पाठक द्वारा भी ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ा गया था और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। चुनाव हारने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से लगातार प्रभात पाठक शिकायत कर रहे हैं, जिस पर पुलिस के आला अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र जिला के धांगध्रा में मामूली रंजिश मामले हत्या का मामला सामने आया है। सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा तालुका के नारीचाणा गांव में खूनी खेल सामने आया है, जिसमें एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने पर उसकी मौत हो गई। गांव के दशरथ ठाकुर नामक व्यक्ति को 3 शख्सों द्वारा निर्मम रूप से पीटते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों से पूछताछ कर पुलिस ने मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। कुछ ऐसे त्योहार हैं जिसकी परंपरा अब लुप्त होती जा रही है, लेकिन आज भी कई इलाकों में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। वडोदरा शहर में ऐसा एक त्योहार मनाया जाता है, देवशयनी एकादशी पर मनाए जाने वाली फुग्गा अग्यारस। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी को बड़ी एकादशी मानी जाती है और गुजरात में इस एकादशी को फुग्गा अग्यारस के रूप में भी मनाते हैं। इस खास दिवस पर बच्चे एक दूसरे को गुब्बारों में पानी भरकर मारते हैं और त्योहार का निर्दोष आनंद उठाते हैं। पुराने वडोदरा शहर में आज भी फुग्गा अग्यारस की परंपरा को निभाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा के कई मोहल्ले और शेरी में बच्चों ने एक दूसरे को गुब्बारे मारकर खुशी खुशी फुग्गा अग्यारस मनाई। हिंदू धर्म में कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए बिना नमक का खाना खाकर 5 दिन का गौरी व्रत करती है। इस मौके पर पादरा में हिंदू एकता ग्रुप युवक द्वारा बच्चियों को पानी पूरी खिलाई गई। पादरा के हिंदू एकता ग्रुप द्वारा कई सामाजिक और सेवाकीय गतिविधियां की जाती है। इसी क्रम में पादरा में गौरी व्रत करने वाली लड़कियों को पानी पूरी खिलाई गई। 5 दिनों तक कुंवारी लड़कियां बिना नमक का खाना खाकर व्रत उपवास करती है। ऐसे में हिंदू एकता ग्रुप द्वारा उन्हें पानी पूरी खिलाकर खुश किया गया। गौरी व्रतना આગલા દિવસે અંબાજી મંદિર રોડ પાસે કુંવારિકા જે છોકરીઓ વ્રત કરતી હોય તેવી છોકરીઓને હિન્દુ એકતા પાદરા તરફથી ફ્રીમાં પાણીપુરીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેની નાની નાની છોકરીઓ ખૂબ જ મજા માણી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં ચાલુ વ્રતના દિવસોમાં પણ હિન્દુ એકતા ગ્રુપ આવા નવા કાર્યો કરતું રહેશે। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। वीएनएम न्यूज बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप फेसबुक और यूट्यूब पर तो देखते ही हैं, और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम टीवी आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर वीएनएम की खबरें आप 24 घंटे देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।